Welcome back to my channel, and let's discuss the answer keys. I hope you got some 135 plus marks. If you didn't, then please keep working towards revision more and more. And let's discuss without further ado. And the first slide says how to evaluate yourself. That is, there is 1 mark deduction for every incorrect question. Please include it while you're evaluating your marks. Okay. Say for example, if you have attempted total 5 questions, right, out of which 3 were correct, then you will get 9 marks. 3 into 3 will be 9. And if at all, say for example, out of 5 question, your one question was incorrect, therefore it will become 9 minus 1, 8. 8 out of how many? 15. Okay, that's how you calculate your marks. As to, say for example, there was total 5 questions in the, like, you attempted 5 questions, only 3 were correct, so you will be awarded 3 mark for each. That is, you will get 9 mark. And afterwards you had one question incorrect, so minus 1 is equal to 8. So overall you attempted was of 15 mark, and out of which you got 8 by 15. Okay, that's how you calculate. So the first question said a person crosses a 600-meter long street in 5 minutes. So you have to tell what was its speed, his speed in kilometers per hour. Basically there's a formula which says that just do what, multiply it, first convert it into meter per second and then multiply it with 18 by 7. So once first, when you will calculate, when you will convert it to meter per second, then what will happen is you are given 600-meter long street and the time is given in 5 minutes. So 1 minute is equal to 60 seconds, therefore 5 minutes will be 5 into 60 seconds. So after division it comes as 2 meter per second. The speed comes in meter per second, and to convert meter per second to kilometer per hour, you have to multiply it with a number called as 18 by 5. Okay, then it will be converted into kilometer per hour. So first step was to convert this minutes into seconds, and then only you could convert it from meter per second to kilometers per hour. Second question, an aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 kilometers per hour. ये उसकी speed है, and in 5 hours. To cover the same distance in 1 hour, in 5 hour it the speed is 240 kilometers per hour. So in 1 hour it is asking you what will be the speed. So first you need to calculate what is the distance which it has traveled total, that is in the speed, and multiply with the time. So the distance which it has traveled total comes out to be 1200 kilometers. As you all know, speed is equal to distance upon time. Now you will divide your speed with the distance. Okay, so with the distance, that is 1200 divided by 5 by 3 kilometers per hour. Required speed comes out like this. So once again I'll tell you that in 1 hour it was asking you. So first what you did was, first you calculated the distance and then you calculated the speed, and from speed you get to know that how much time will it take to cover it in 1 hour. Okay, if a person walks at 14 kilometer per hour instead of 10 kilometer hour, he would have walked 20 kilometer more. The actual distance traveled by him is, basically हम ये मान के चलते हैं कि say for example he has traveled x, so it is saying that कि अगर वो 10 kilometers का distance वो कर लेता तो क्या होता, ज़्यादा हो जाता इससे. So from this equation we can say, it is saying basically what it is saying is x by 10, which is, आप सबको पता है 10 क्या है, 10 स्पीड है, एंड x विल बी, हम टाइम लेके चल रहे हैं. सो बेसिकली इफ़ वी आर सेइंग कि डिस्टेंस उसने x किलोमीटर्स कवर किया, तो डिस्टेंस बाय 10 इज इक्वल टू x प्लस 20 बाय 14. यही आपकी इक्वेशन बोल रही है. सो बेसिकली सॉल्विंग दिस इक्वेशन विल गिव यू द आंसर. करना इसमें सिर्फ इतना था कि आपको स्पीड दे रखी है, कितनी की स्पीड से वो चल रहा है, और ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन में कि अगर वो उस स्पीड से 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता. तो आप क्या करोगे, यहाँ इसकी जो इक्वेशन दी है, यानी कि स्पीड 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 कोशिश कर रहे हो आप करने की, राइट. तो डिस्टेंस अगर एक्स चल लिया उसने एंड उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर्स पर आवर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन स्पीड. यहाँ भी आप यही कर रहे हो, यहाँ भी आप यही कर रहे हो. दैट्स वाई यू आर मेकिंग दिस इक्वेशन. कॉपी पे सॉल्व करोगे आपको सीधा समझ आ जाएगा. अब क्वेश्चन है कि ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार. यहीं देख लेते हैं सीधा. अगर आपकी जो ट्रेन है वो 50% फास्टर चलती है आपकी कार से, और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पॉइंट बी सेम टाइम
ए से स्टार्ट करते हैं, रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम पे एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 75 किलोमीटर। रास्ते में हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। तो स्पीड ऑफ द कार इज, आपको किलोमीटर पर आवर में ही सब कुछ दिया है, किलोमीटर पर आवर में ही कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली हम लेके चल रहे हैं, मान लो स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर होगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 150/100x इज इक्वल टू 3/2 इंटू किलोमीटर्स पर आवर। 150/100x क्यों किया, क्योंकि 50% फास्टर x ले लिया कि कार का ऑलरेडी x था प्लस 50%, तो ये कितना हो गया, इसी को करके हमने क्या कर लिया 150/100x कर लिया, इक्वल टू, बस इक्वेशन इक्वेट करनी है जिससे कि फाइनली यू विल गेट टू द आंसर। ये आपको आना चाहिए सिर्फ कि यहाँ पे इक्वेशन क्या बोल रही है। ओके, सो दिस इज 3/2 एट द सेम टाइम। 3/2 सिंपली कैसे हो जा रहा है, 75 50, 25 से आप डिवाइड करोगे तो 3/2 कॉमन आता है। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आप यू इन कॉमेंट डाउन अगेन कि आप वैसे समझाओ कि इनमें लॉजिक क्या लगा है। ठीक है, इक्वेशन बनाना इज़ नॉट समथिंग जो मैं ऐसे बताऊँ आपको। आप अगर पेज पे स्टार्ट करोगे फिर सॉल्व इट इन योर नोटबुक, यूल गेट टू सी कि आपको करना क्या है। हो सकता है आपका तरीका ये ना हो, ठीक है, बट यू विल गेट टू द आंसर्स। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, अगर स्पीड जो है वो बस की है 54 किलोमीटर्स, अगर वो किसी स्टॉप पे नहीं रुकती है तो इट्स स्पीड इज़ 54 किलोमीटर पर आवर है। इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, अगर वो रुकती है तो 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बीच में कुछ स्टॉपेज पड़े हैं जिससे कि इसमें 10 किलोमीटर्स पर आवर का डिफरेंस आ रहा है। तो ड्यू टू स्टॉपेजेस 54 और क्या नंबर था 45, तो आप पहले कर लोगे कि 54 माइनस 45, तो कितने किलोमीटर्स कम ट्रैवल कर रही है ये वाली बस, जिसमें कि स्टॉपेजेस है 9 किलोमीटर्स। तो अब बेसिकली 9 किलोमीटर्स दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है। 9 किलोमीटर्स दिया है, डिस्टेंस 54, सॉरी स्पीड 54 है, तो 9/54। अब कितने में निकालना है, मिनट्स में निकालना है, मल्टीप्लाइड विथ योर 60, तो मिनट्स में आ जाएगा आंसर। नाउ कम टू ए कैन डू अ वर्क इन, ये वर्क इन टाइम का है, इन 15 days एंड बी कैन डू इट इन 20 days। अगर साथ में करते हैं तो 4 दिन में लगता है, तो द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है कि ए कैन डू द वर्क इन 15 days, तो इसमें आप रिवर्स लेते हो हमेशा 1/15। ये वर्क ए का फ्रैक्शन हो गया कि ए ने एक दिन में कितना काम किया है, ठीक है, वो 15 days ले रहा है। ऐसे ही बी जो है वो एक दिन में 1/20 वर्क करेगा। टोटल अगर ए और बी का हम एक दिन का वर्क निकालें तो 7/60, और ए और बी का 4 दिन का काम निकालें तो 7/15। अब बेसिकली टोटल वर्क जो है वो रहा होगा 1, टोटल वर्क वो 1 लेके चल रहे हैं हम कि कंप्लीट वर्क वॉज 1। अब 4 दिन में कितना कंप्लीट कर रहे हैं 7/15, तो माइनस 7/15, तो बेसिकली जितना वर्क बचा है दैट इज़ 8/15। कहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, आई फील ये क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला ताकि आपको उनके एक दिन का वर्क पता चले, जिससे कि आप उनके 4 दिन का वर्क कैलकुलेट कर सको। उनने कितने दिन काम किया है टोटल, उनने टोटल काम किया है 4 दिन के लिए, तो आप 4 दिन का वर्क कैलकुलेट करने के लिए पहले एक दिन का वर्क कैलकुलेट करोगे, देन यू विल कैलकुलेट इट फॉर 4 days। जब आपका 4 days पे आ जाता है देन यू विल सी कि टोटल वर्क डन इज ऑलवेज 1। फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो कंप्लीट जो वैल्यू होगी वो 1 होगी हमेशा, उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना वर्क डन बचा है। नाउ लेट्स कम टू 7th क्वेश्चन। ए जो है वो रेलवे ट्रैक को ले कर सकता है बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 days, और बी इसी काम को कर सकता है 12 दिन में। जब ये सी को हम इंक्लूड कर लेते तो ये इस काम को कर लेते 4 days में। तो बता रहा है कि सी अलोन, सी अकेले कितने दिन में करेगा। ए और बी और सी मिला के एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं 1/4 वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली 4 days में हो जा रहा है वो काम, ठीक है। तीनों मिला के A + B + C इज इक्वल टू 4 days, तो एक दिन का काम फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/A 1/B 1/C, तो ये हो जाएगा 1/4। ऐसे ए का एक दिन का वर्क है 1/16, बी का 1/12 है, और सी का 1 day का वर्क हो जाएगा A + B, टोटल जो है 1/4, टोटल वर्क माइनस A + B, तो टोटल वर्क इज 1/4 माइनस A + B। जब आप ये करोगे तो 5/48 आएगा। 5/48 को इनने क्या किया है, इधर इनने जिस फॉर्म में दिया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 48 को 5 से। 5 9 जा 45 होता है, कितना बचा 3। तो ऐसे में क्या करते हो आप, रिमाइंडर वाली इक्वेशन में मांग रहे हैं आपसे 9 3/5। ये बेसिकली वैल्यू जो कि 9 यहाँ आई थी
यहाँ 3 आई थी, यहाँ 5 आई थी, जिससे आप डिवाइड करते हो आप उस वैल्यू को नीचे लिखते हो, जितना बार डिवाइड होता है मतलब जितने टाइम्स डिवाइड होके आता है उसे ऊपर लिखते हो और इधर रिमाइंडर को इधर रखते हो। तो ये क्या हो गया 3 9/5। ऐसे यहाँ पे आपको आंसर दे रखा होगा, सॉरी मैंने कुछ गलत किया, 9 जो आपका रिमाइंडर है, 1 मिनट, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, जो आपका जितने से आपने जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है वो आप नंबर यहाँ लिखते हो, बेसिकली जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर आता है और जिससे डिवाइड करो वो नीचे आता है, तो 9 3/5 विल बी द आंसर। ओके, सी इतने टाइम में कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको सी एस आई के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, अगर किसी का सी एस आई अभी नहीं हुआ है तो। ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क, सेम सेम तरीके का क्वेश्चन पहले आप खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि दीज आर वेरी वो होते हैं प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं ये, इनमें कुछ नहीं होता, जो टोटल दिया होता है उसको आप एज इट इज़ लेते हो। अगर आप फ्रैक्शन 1 डे का वर्क निकाल रहे हो तो 1/a हो जाएगा, जो ए का वर्क है 1/a कर दोगे तो 1 दिन का ए का वर्क आ जाएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। आई विल सजेस्ट कि आप इसको सर्च करो कि प्योरेस्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन बॉम्ब बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंडेंट होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट, ऐसे आप मरकरी की बात करते हो, नॉन मेटल में आप क्या बोलते हो, ब्रोमीन है। उसके बाद हम आते हैं 12th क्वेश्चन, IF7 का स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक बार देख लो, उनकी याद कर लो कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर किस फॉर्म में मिलता है। 13th, ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसको कोरोड करने में काम आती है। 14th, among the given nutrients milk is poor source of vitamin, so it is always advisable कि आप मिल्क लो तो आप कुछ विटामिन सी का सोर्स लो। among the given nutrients milk is poor source of vitamin C, name the scientist who stated that E is equal to mc square, पूछ रहे हैं matter can be converted into energy, सबको पता है आइंस्टीन। among the following maximum covalent character is shown by AlCl3, covalent character के questions एक बार you will go and see। okay, 17th question, by the material light can transmit without any loss is known as ट्रांसपेरेंट लाइट। अगर एज इट इज इट गेट्स पास थ्रू आउट, 100% पास हो जा रही है ट्रांसपेरेंट लाइट। वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज रेनबो ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, दिस आई थिंक यू गाइज ऑल नो। उसके बाद व्हेन अ पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड एज मायोपिया। मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म देखना पड़ेगा आपको। डैश इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो कौन सी होती है, न्यूटन, सबको पता है। 21, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड बोलते हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 10 किलोमीटर्स, तो ये पावर में पूछा था, एक बार करके देखना। mm होता है, मैं आपको वो स्केल बना देती हूँ। स्केल होती है किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, कन्वर्ट करोगे, यहाँ से कन्वर्जन करोगे तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे इस तरफ जा रहे हो, मान लो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स, फिर से बना के दिखाती हूँ, आई होप आपको आता हो। किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अब आपसे अगर पूछे कि 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर की जगह 1 रखोगे और मीटर तक की 0 लगा दोगे, कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 1 2 3 4 5 6, जिसकी पावर लगा रहे होते हो ऐड हो जाता है, 10⁻7। आंसर विल बी 10⁻7। 23, गैलन इज कॉमनली यूज एज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम, पता है आपको, गैलन खुद बोला जाता है गाँव में आज भी। इन विलेजेस इफ विल गो देन गैलन ही टर्म दिया जाता है उस डब्बे को जिसमें आप कोई भी पानी या लिक्विड लेके आते हो। 24, अ मूविंग बॉडी डेफिनेटली possesses व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ऑफकोर्स ये तो मूवमेंट का है, क्योंकि वेलोसिटी होती है उस पर या स्पीड होती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट, इसके मोशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। उसके बाद आते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ लीस्ट वेवलेंथ, डी, किससे याद करना है, विबग्योर से, विबग्योर से। इस तरफ आर पे मैक्सिमम होती है, वी पे सबसे कम होएगी, तो वॉयलेट दिया हुआ है लीस्ट के लिए। FC फ्रेगमेंट इन एन एंटीबॉडी कंटेन, ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट्स होती हैं FC फ्रेगमेंट के पास, इसको क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IG आइसोटाइप वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग पोलियो वायरस बिफोर इट इन्फेक्ट्स इंटेस्टाइनल सेल्स, कौन सी, ए, कैसे इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में। उसके बाद रिलेटेड टू एफिनिटी मैच्यूरेशन, सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन, यू ऑल नो दैट, बहुत सारी
तरीके की एंटीबॉडीज़ बनाना सारा काम एफिनिटी मैच्योरेशन का है। एक तरीके की थी, मल्टीपल तरीके की बनना। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 30। Myasthenia gravis in humans is characterized by increased muscular weakness because of diminishing effects of acetylcholine at neuromuscular junction। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसी एसिटिलकोलाइन जो होता है उसका जो रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट होने लगती है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, माइस्थेमिया ग्रेविस। ओके। TH1 सबसेट ऑफ टी सेल टिपिकली सिक्रीट्स क्या करता है, इंटरफेरॉन INF गामा सिक्रीट करता है। उसके बाद हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहाँ मिलते हैं, सबको पता है, बोन मैरो में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी इसीलिए होता है बिकॉज वहाँ पे स्टेम सेल्स होती हैं। उसके बाद आते हैं 33, 34, 35। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज डिफेक्टिव इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किड सीवियर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर उनको होगा तो बेसिकली ADA की डेफिशिएंसी होगी। ADA क्या करता है, ADA की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो ये सब तो अगर आप इम्यूनोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो तो आई थिंक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मैंने बहुत इजी रखा है क्वेश्चन पेपर को, और नेक्स्ट टाइम से मैं इसको टफ करूँगी ही करूँगी। इन स्किड सिंड्रोम देयर इज किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, देखो ADA की डेफिशिएंसी हो रही है, TNB सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ADA की बात करें तो आपने सबसे पहला जब जीन थेरेपी पढ़ा होगा तो ADA की ही हुई थी। एक बच्चा था डेविड नाम का मेरे ख्याल से, जहाँ तक एज फार एज आई रिमेंबर ADA डेफिशिएंसी थी उसमें, तो स्किड की वजह से, और उसे हल्का फीवर हो गया एंड उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, अदरवाइज वो सर्वाइव कर जाता। 144 is a monoclonal antibody of the IgM class was purified from a hybridoma culture supernatant and terminal sequence analysis किया तो हमें क्या मिला, 2 डिफरेंट एंड टर्मिनल माइनस रेसिड्यूज मिले IgM क्लास की। एक बार IgM की एंटीबॉडी बना के देखना और फिर देखना कि जब क्लीव करेंगे तो सिर्फ क्या निकल सकता है वहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम स्टेरलाइज मिल्क लैक्सिन, बता दिया मैंने, मिल्क में वैसे भी पुअर ऑफ विटामिन C होगा, और अगर आप स्टेरलाइज कर दोगे तो आपके जो ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं या हीट लेबाइल वाइटामिन होते हैं, इनको दिक्कत आ जाएगी। क्राबेज डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन बीटा गैलेक्टोसिडेज। निमेनपिक होती है स्पिंगोमाइलिनेज। बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है ये, आ सकते हैं आपके मैच द फॉलोइंग में, एक ही क्वेश्चन में। क्रैबेज आ सकता है, गॉशर्स आ सकता है, निमेनपिक आ सकता है। अ सिग्मोइडल प्लॉट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन वेलोसिटी में इंडिकेट व्हाट, कि वहाँ पे कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो रही है, अदरवाइज वो सिर्फ एक हाइपरबोला बना देगा अगर नॉन कोऑपरेटिव होगी तो। 40 इन रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनिबिशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम इज रिड्यूस्ड। ये आपको मैंने कल ही बोल दिया था, स्टडी अबाउट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड स्टडी अबाउट रिवर्सिबल मॉडिफिकेशंस, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। अब molybdenum containing oxidase is xanthine oxidase, similarly copper containing is cytochrome oxidase। sequence is very important, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या रेस्पिरेटरी चेन का सीक्वेंस होता है। दिस आई विल नॉट डिफाइन क्योंकि ये बेसिकली आपको पता होने वाली चीज़ है। 44 केमिकल इनहिबिटिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे, डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये होता है ट्रेक्टाइलोसाइड। All immunoglobulins, बहुत easy question। Immunoglobulin molecule always contain, again very easy question, number of hypervariable regions in L and H, एक का difference होता है L में 3 and H में 4। The type gamma, very easy, where it is gamma then it is G, when it is alpha then it is A, when it is mu it is M, when it is delta it is D। So similarly alpha is A। Hormone that binds to intracellular receptor is thyroxine, a hormone that binds to cell surface receptor and requires secondary messenger CMP is antidiuretic hormone। Similarly एक क्वेश्चन दिया है मैंने जहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया, मैं बताती हूँ। हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी इज ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे पोस्टीरियर का ADH हो जाएगा या वैसोप्रेसिन। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन्स, ये आपको आए ना आए मैं इससे आपकी इंटेलिजेंस जज नहीं करूँगी, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 191 एक्रोमेगली रिजल्ट्स ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ईशांत शर्मा, हाँ सॉरी, ईशांत शर्मा जो आपके क्रिकेटर थे, अभी मुझे करंट स्टेटस नहीं पता, उनके में आप सिंगल मतलब बहुत क्लियरली एक्रोमेगली देख सकते हो, उनकी चिन भी इनलार्ज है, फेस भी इनलार्ज है, तो बेसिकली इतनी हो जाती है जब ग्रोथ हार्मोन की अबंडेंस होती है। तो सेकेंडरी मैसेंजर फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज नो सेकेंडरी मैसेंजर इज रिक्वायर्ड। सो अगर सेल सर्फेस होता तो बेसिकली सेकेंड मैसेंजर की ज़रूरत होती, ब्लड वो स्टेरॉइडल हो चुका है इसीलिए उसको सेल सर्फेस की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है। In Addison's disease, there is excessive retention of potassium. Structure of tRNA, very easy question। clover leaf और L shape और clover leaf से दो ही देखते हो 2D 3D में।
उसके बाद लीश नियान लास्ट क्वेश्चन, द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एब्सेंस ऑफ HGPRTase हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फो रिबोसिल ट्रांसफरेज मे लीड टू ए ऑप्शन कंपल्सिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन किसी मेंटल डिसऑर्डर से नहीं आता, इट कम्स बिकॉज देर इज अ हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन योर सीरम। सीरम में हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, जिसके साथ गाउट के जो सिम्टम्स है वो आएंगे, जिसके साथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आएगा। ओके, सो मैनी टाइम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हैज सम अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल रीजंस, जिसका वन ऑफ द एग्जांपल कुड बी और लीश नियान सिंड्रोम। विद दिस खत्म होता है पेपर। आई होप आपका पेपर अच्छा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर वॉज वेरी ईजी। आप फंसे होगे तो एप्टीट्यूड में नहीं आता तो यू कैन लेट मी नो। अगर मुझसे इतने कम टाइम में कुछ हो पाएगा तो आई कैन गिव यू बेसिकली फॉर्मूलाज। बाकी अदरवाइज यू कैन गो वॉच माई DBT वाला लेक्चर, उसमें मैंने सारे फॉर्मूला दिए हैं, उसके आगे पीछे कोई फॉर्मूला आपके लिए रखा नहीं हुआ है। राइट, मतलब उतने से दैट इज़ सफिशिएंट, वो हो जाएगा उतने से। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और प्लस टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी, कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाते जाओ, बिकॉज ओनली 4 to 5 days आर लेफ्ट। एंड इस टेस्ट के साथ आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, आपका एंथुजियाज्म बढ़ना चाहिए। दैट इज़ व्हेन ओनली मेरा जो मोटो है वो फुलफिल होगा। ओके, क्योंकि मेरा एफर्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं आई पुश माई स्टडीज़ फर्दर कि मैं इतने टाइम में मैनेज कर लूँगी, जस्ट बिकॉज मेरे को ये चीज़ करनी है आप लोग के लिए। राइट, एंड दैट इज़ माई ओन डिसीजन, उस पर आप लोगों ने मुझे फोर्स नहीं किया है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि आपने नहीं बोला। क्योंकि अगर मैं बोलती तो आप बोलते कि नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स ओके। बट देन अगेन मैं ये 6 मॉक टेस्ट दे रही हूँ, ताकि इन 6 दिनों में ना आपकी जो पढ़ाई है वो 6 टाइम्स हो जाए। एंड इसकी वजह से भी बहुत लोग का पेपर निकलेगा, आई एम अश्योरिंग यू। क्योंकि एन आई में शॉर्ट लिस्ट बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं मॉक इंटरव्यूज़ रखूँगी। बट अभी आप इस पर सिर्फ ध्यान दो एंड गिव यू 100%। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग। ओके।